हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्सफील्ड। सो जो आज की हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ द CEO ऑफ ऊषा फाइनेंस, द कंपनी दैट इज़ सून टू बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। सो प्लीज़ वेलकम मिसेस गीता गोस्वामी। हेलो मैम, वेलकम टू बुल्सफील्ड पॉडकास्ट। Hello, thank you so much. Happy to be here. तो मैम, हाउ इज़ इट गोइंग एंड हाउ आर यू एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग IPO ऑफ योर्स? Yes, we are very excited and busy also, and we are into the process. So we are planning to file RHP in next week, and hoping that in this month we will open the IPO, ओके and we'll close it soon and list. It will list soon. Okay, so I just want to know like what is the working of Usha Finance because you are the CEO of the company. So like I just want to know from very basic like what is the work of Usha Finance and like how is it doing nowadays? So we started Usha in 2016. It is a registered NBFC with RBI in B category, or you can say ICC, Investment and Credit Company. So it's almost 8 years now, and we are in profit since inception. So in first year we were at the AUM of 20 CR, and the profit was approx 60 or 65 lakh rupees. And at present the AUM is 330 CR, and the profit of March 24 was 14 CR. So I think that is a good growth. In between of the COVID for 2 years we were little slow, but now we are speeding up and going for the IPO. So like since the IPO, like what is the proceeds, like what are you thinking, like planning behind the IPO that is going on, like why are you bringing the IPO of the company? As you know, the raw material of the NBFC is the money. Hmm. So that will upgrade the equity of the company. So all proceeds will use into the for the lending or working capital only. So it will give a good base of equity to the company. So we will be able to more leverage, and we will be able to take the more risk in the company. Okay. So ma'am, what was your role before joining the company and what were you doing before joining the company? Because were you in the same team of business like Yes, NBFC? yes. I have 15 years of experience in the finance industry. I am a CS, MBA from FMS. I'm done my leadership program from IIM. So I have a good experience of finance industry. And before joining Usha, I was in finance only. Okay. So like in the finance sector, NBFC is like quite different kind of business as per Yeah. of other things of business that are in the stock exchange. So like since you are bringing up the IPO, is there any new thing that you're going to start after the IPO in the same business? Yes, we are planning. We are already doing the EV portfolio, and we have green financing, but we will expand this portfolio. As you know, the SME and MSME is a big segment. सो वहीं पर अभी बहुत सारा स्पेस है कि आप उसको एक्सपेंड करो. अभी हम इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम उसको और डाइवर्सिफाइड करें. वी आर ऑलरेडी इन 3 और 4 प्रोडक्ट्स. तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, SME है, MSME है, ग्रीन फाइनेंसिंग है, एग्री है, सम पार्ट ऑफ दी वाटर सैनिटाइजेशन है. सो उसी को हम एक्सपेंड करेंगे और उसी में ग्रोथ करेंगे. ईवी को थोड़ा ज़्यादा हम फोकस करेंगे. उसमें अभी जैसे हम सिर्फ ई रिक्शास कर रहे हैं, बैटरीज कर रहे हैं, तो उसमें हम सोलर में भी जाएंगे, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जीज में भी जाएंगे. तो उस पर हमारा थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा. तो टुवर्ड्स जो भी जितने भी फंड्स आएंगे IPO के प्रोसीड से सारे उसी सेक्टर में यूटिलाइज होंगे. सारे उसी सेक्टर में नहीं यूटिलाइज होंगे. मतलब दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20, 30 एंड 10%. दैट विल बी डिसाइड बाय द बोर्ड. जो भी पॉलिसी डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग उसको करेंगे. बट ग्रीन फाइनेंसिंग विल बी द फोकस्ड, ओके. बिकॉज वी वांट टू गो विद द सोशल इम्पैक्ट. सो वी आर प्लानिंग कि उसमें थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे. Okay. बट जो ऑलरेडी हैं हमारे सेक्टर्स SME उसमें भी उतना ही एक्सपेंड करें. सो जो मेन बिजनेस है ऊषा फाइनेंस का, वो किस साइड से आता है, किस सोर्स से आता है, लाइक किसको लेंडिंग प्रोवाइड करता है, जो मेनली आप लोग लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं? जो है मेन कस्टमर्स हमारे रिटेल से होता है, जो कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर बैंक्स की रीच नहीं है. तो हमारी टीम वहाँ पे जाकर उनको सोर्स करती है. फिजिकली भी हम ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज वो लोग इतने अभी अपडेटेड नहीं हैं. तो फिजिकली हम लोग ज़्यादा उन पर फोकस करते हैं. तो जितना भी हमारा 90 to 95% पोर्टफोलियो जो हमारा है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में है. तो वहाँ पे हमारा फोकस है, और वहीं पे आगे भी हम उसी सेक्टर में काम करना है. तो मैम, सिंस यू आर गोइंग टू दीज काइंड ऑफ सेमी
एरियाज, तो यहाँ से लाइक रिकवरी मुश्किल नहीं होती? रिकवरी मुश्किल मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा वहाँ पे सोशल उसका भी रहता है, और जो लोग हैं वहाँ पर दे आर वेल अवेयर अबाउट कि हाँ लोन लेना है, उनका सिबिल ख़राब हो सकता है इफ़ दे विल नॉट पे। तो दे आर वेल अवेयर एंड एजुकेटेड ऑल्सो इन केस ऑफ द लोन्स, जो उन्हें फाइनेंस लेना है कंपनी से। तो वो एक एक बंदा कोई दो दो तीन तीन कंपनी से फंड ले रहा होता है, तो दे आर मोर अवेयर। कहीं पर इश्यूज आते हैं वो तभी आते हैं जब कहीं कुछ क्राइसिस होते हैं, जैसे कोविड का टाइम हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी बाढ़ वगैरह का काफ़ी रहा है, तो तब थोड़ा क्राइसिस होता है, थोड़ा स्लो हो जाती है रिकवरीज, बट ऐसा नहीं है कि पैसा ख़राब हो जाता है। और इसमें मेल फीमेल का रेशियो क्या रहता है मैम लोन लेने पे? अभी हमारे को ये 28,000 कस्टमर्स हैं, जिसमें से हमारा 70 to 75% वोमेंस हैं। तो हमारा फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है वोमेंस पर, क्योंकि हमें लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी मेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, और सोशली वो ज़्यादा इम्पैक्ट रहती हैं। और तो हम कैटर करते हैं उनको कि जो कोई छोटा सा कोई बिजनेस कर रही है, किसी की चाय की शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, सलून है, कोई टेलरिंग की शॉप है, या कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह का कुछ काम कर रही है कोई लेडी, तो हम उनको कैटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको फंड्स दें। तो अब ट्राई करते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस है दैट आर लेड बाय द वुमेन उनको यस सपोर्ट यस करें। यस, उनको मेन वुमेन डिफॉल्ट एम्पावर कर देते हैं करें। ज़्यादा? मैं डिफ़ॉल्ट, हाँ, सोशली क्रेडिबिलिटी वोमेंस की थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा फियर होता है सोशली उनको, वो रहता है थोड़ा सा। तो इसलिए जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि वोमेंस ज़्यादा क्रेडिबल होती हैं। ओके, तो मैम इसकी विजन क्या है उषा फाइनेंस की, अल्टीमेट विजन की कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप उषा कंपनी फाइनेंस तो हम को? बहुत मतलब बड़ी बनाना चाहते हैं, बट इट विल टेक टाइम। सो इफ़ वी टॉक फॉर दिस ईयर, हम अगर हम इस साल की बात करें तो हमारा कोई 550 CR का AUM का प्लान है। और फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years वी आर प्लानिंग 2,000 CR to 2,500 CR का हम प्लान कर रहे हैं, विद द गुड कस्टमर बेस के साथ हम अच्छा आगे जाने का प्लान कर रहे हैं। तो लाइक व्हेन यू अक्वायर्ड द उषा फाइनेंस एंड व्हेन उषा फाइनेंस वाज स्टार्टेड, सो लाइक आप लोगों ने किस, बिकॉज द कंपनी हैज़ बीन टेक ओवर, सो जस्ट टेक ओवर होने के बाद आप लोगों ने कैसे इसमें बिजनेस स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से? बेसिक से हमने स्टार्ट किया, सारी पॉलिसीज़ वगैरह को हमने बनाया पहले, पूरे फील्ड्स को विज़िट किया जहाँ पे हमें बिज़नेस करना था, अदर NBFC से डिस्कशन किए, कंसल्टेंट से डिस्कशन किए, कुछ हमने लोन भी लेकर देखे कि कोई अगर लोन लेता है तो किस तरह से लोन कोई कंपनी देती है, क्या क्या वो लोग हमसे पूछते हैं। तो एवरीथिंग हमने खुद ही एक्सपीरियंस की, मैंने खुद भी लोन लिए, हमारे MD हैं उन्होंने भी, मतलब हम जो भी हमारी टीम थी, हमारा पूरा फोकस था कि जो भी पहले हम स्टार्ट करें बिफोर द एनी डिसबर्समेंट, हमने सारे प्रोसेस पॉलिसी सारी चीज़ों पे काम किया, खुद फील्ड विजिट जाकर की, गांव-गांव में गए, वहाँ पे लोगों से बात की, वहाँ पे जो और कंपनियां डिसबर्समेंट्स कर रही थी, लोन्स दे रही थी, उनको उनसे समझा कि किस तरह से रहता है, ब्रांचेस विजिट की उनकी, और क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या इश्यूज रहते हैं, क्या रिस्क आते हैं, क्या टेक्नोलॉजी अभी वहाँ पर है, वो सब चीज़ें हमने रिव्यू करके पॉलिसीज़ बनाई, प्रोसेस बनाए, उसके बाद हमने फिर स्टार्ट किया। तो और फिर टाइम टू टाइम वो जैसे जैसे अपग्रेड होते गए, कस्टमर भी अपग्रेड होता चला गया कि आज किसी का क्रेडिट का कुछ इशू है, किसी का कुछ इशू है, तो वो अकॉर्डिंगली हम पॉलिसीज में फिर चेंज करते चले गए। तो अभी 8 years का हमारा पूरा वो हो गया है, तो वो काफ़ी जो क्रेडिट आप बोलते हो कि पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। तो लाइक ये जब स्टार्ट किया आपने, तो ये आइडिया कैसा है कि लाइक हम बिल्कुल सेमी अर्बन एंड विलेजेस एरिया में जाके वी विल प्रोवाइड द लोन्स? आप देखो जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर तो मुझे लगता नहीं, बैंक्स की भी रीच है, बैंक खुद भी, और इतना सारा टेक्नोलॉजी का भी अभी अपग्रेडेशन हो गया है, तो लोग अपने आप ही अप्लाई कर लेते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में मुझे लगता है कि कस्टमर को और बैंक्स को एक दूसरे से पहुँचने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ कस्टमर को बैंक के पास पहुँचने में और बैंक को कस्टमर के पास पहुँचने में बहुत इशू रहता है। तो बिहाइंड दिस इस आइडिया के साथ हमने इसको स्टार्ट किया था कि हमें रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में काम सो करना अभी है। ऑल ओवर द इंडिया यू आर कवरिंग ऑल द काइंड्स ऑफ रूरल एरियाज, और लाइक इज द पॉसिबिलिटी कि अभी आपको IPO के बाद कोई नए एरिया में रीच करना है अभी? अभी एरियाज़ तो काफ़ी हैं, बट स्टिल अभी भी हम 18 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और 280 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। बट अभी जोग्राफी काफ़ी है, मतलब जहाँ पे हम स्प्रेड करेंगे। और जो कस्टमर अभी एग्जिस्टिंग है वहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं कि 25 एक ब्रांच जहाँ पर खोलते हैं वहाँ के 25 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। उसके बाद हम और 2 ब्रांच, मतलब उसी एरिया में अगर हम एक बात करेंगे हम समस्तीपुर की बिहार में, तो वहाँ पे अगर हम एक ब्रांच खोलते हैं तो हम 25 किलोमीटर तक ही कैटर कर पाते हैं, लेकिन हम दूसरी ब्रांच खोल के और उसी एरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे लाइक लोन प्रोवाइड करके रिकवर करने में या फिर कोई कोई नई दिक्कत आई हो? ऐसा सब जगह होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर कस्टमर के साथ हो जाता है, कभी उसकी कहीं कुछ जॉब में प्रॉब्लम हो गई, कहीं उसके फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम वहीं होती है जहाँ कस्टमर की इंटेंशन में प्रॉब्लम होती है। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर केस जो आपने खुद देखा है?
ऐसे बहुत सारे केस हम देखते हैं, मैं खुद भी कॉलिंग भी करती हूँ रिकवरी पे भी। अभी हम ईवी का जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जैसे इश्यूज आते हैं कुछ, तो कस्टमर को हमारा वेबसाइट पे सब टोल फ्री नंबर, कस्टमर खुद कॉल कर देता है कि हम आपने ऐसा रिक्शा दिया, उसको ये लगता है कि रिक्शा हमने दिया है रिक्शा, कि उस रिक्शा में ये प्रॉब्लम आ रही है या ये आ रही है, कुछ इस तरह से जब वो बात है तो मैं खुद भी बात करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, फिर जिस डीलर के थ्रू वो हुआ है उसको सब मतलब हम बताते हैं, वो उसके इश्यूज रिजॉल्व करता है। तो रिकवरी पे पूरा फोकस रहता है, क्योंकि अगर आप रिकवरी छोड़ दोगे तो पूरी कंपनी का प्रॉब्लम हो सकती है, और जीएनपी एनपीए वगैरह भी बढ़ सकते हैं। तो रिकवरी पे पूरा फोकस रहता है, जहाँ प्रॉब्लम होती है हम खुद कॉल भी करते हैं, विजिट भी करते हैं जिस एरिया में जहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तो जैसे कि जो भी कस्टमर्स लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ये क्या वेब बेस्ड पोर्टल के थ्रू रहता है या फिर दे हैव टू कम एंड गिव ऑल द पेपर्स टू वेरीफाई एंड एवरीथिंग? नहीं, वो नहीं आते हैं, हमारी टीम जाती है वहाँ पर। ओके। वो जाकर सर्वे करते हैं उनके घर का, उस गांव का सर्वे करते हैं, उस विलेज का जो पंचायत वगैरह होती है उसके थ्रू सर्वे करते हैं। उस कस्टमर का जब ओके होता है कि हाँ इस कस्टमर को लोन्स दे सकते हैं, तो उसके घर का विजिट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें फिजिकल होती हैं, जो कस्टमर से कनेक्ट करते हैं वो फिजिकल होता है। लेकिन जो हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। तो लाइक अब ये जो आप लोग जैसे कि डाउन द लाइन 10 years हम कहाँ देखने वाले उषा फाइनेंस को? लाइक उषा फाइनेंस का क्या आगे कोई नया एरिया कॉन्कर करना है या फिर उसके अलावा कोई नई थीम ऑफ बिजनेस या कोई नई सेक्टर में आप लोग को लोन प्रोवाइड करना है? बिकॉज लोन सेक्टर इज क्वाइट बिग। 10 years will be a long period to say anything. I think 3 और 5 years की अगर हम बात करें तो वी आर प्लानिंग कि हम 2000 CR और 2500 CR का AUM क्रिएट करेंगे, जिसमें हम कुछ नए जो सेगमेंट्स कर सकते हैं कि ये ग्रीन फाइनेंसिंग का हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया। वैसे तो SME MSME ये खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, अभी क्या करते हैं हम बहुत ही छोटे टिकट साइज़ के लोन करते हैं जो कि 25,000 से 5 लाख तक के होते हैं। ओके। तो उसमें हम जो थोड़े और अपग्रेडेड कस्टमर होते हैं जिनको हम उनको 50 थोड़ा लाख और तक big का loan लोन हो दे सकता सकते है। हैं, और थोड़ा उनका और ज़्यादा बड़ा बिजनेस है उनको हम उसमें डाल सकते हैं। क्यों अभी हम टिकट साइज इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कि सो दैट कि रिस्क हमारा कवर रहे। जब हमारे पास इक्विटी होगी, इक्विटी बेस अच्छा होगा, तो हम थोड़ा सा अपना ये जो टिकट साइज है उसको बढ़ा सकते हैं। तो लाइक इसका IPO साइज़ क्या है मैम, और लाइक कितना बड़ा IPO आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आफ्टर इसके पास कोई पॉसिबिलिटी है कि FPO भी देख सकते हैं हम? अभी जो हम प्लान कर रहे हैं 90 to 95 CR का प्लान कर रहे हैं। मतलब जो शेयर्स हैं उसमें 58,60,000 के शेयर्स हैं, क्योंकि अभी और कुछ कितनी इक्विटी डाइल्यूट हो रही है मैम? अप टू 27%, दैट Okay. इज 26.56 है, तो 27% तक यू कैन कंसिडर इट। सो फ्यूचर में यस डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द FPO। सब इक्विटी का सारा ये सब हो जाता तो उसके बाद वी कैन प्लान फॉर द FPO। So is any other big anchor investor institution that is participating? वी आर इन डिस्कशन विद द एंकर्स। अभी नाम लेना तो आई डोंट थिंक सो, कि कोई कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। RHP के बाद वी कैन फाइनलाइज कि किसको हमें, वी आर गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम मैनी एंकर्स। सो ये हो जाता है तो देन वी विल फाइनलाइज कि किसको हमें करना है किसको नहीं करना है। Okay. So like Usha Finance and like related to all the NBFC sectors. So इसमें क्या यूनिकनेस है जो आपको लगती है? यूनिकनेस यही है कि हम एक तो रूरल सेमी अर्बन एरियाज में करते हैं, जहाँ तक बड़ी ये और NBFC NBFC प्रोवाइड नहीं कर रहे इस समय? कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा कस्टमर है और उनका कस्टमर है वो बहुत अलग अलग कस्टमर है। ठीक है। क्योंकि बड़ी NBFCs लाइक ऑफ द बैंक्स हो जाती हैं, वो वही क्राइटेरिया फॉलो करती हैं जो कि बैंक्स कर रहे होते हैं। तो फिर वो जो कस्टमर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लोन दे रहे हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वो उनको लोन नहीं देते, वो उनकी कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा कस्टमर का लोन, जब कस्टमर कोई लोन लेता है तो उसको उस लोन लेने की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो किसी रिक्वायरमेंट के लिए, किसी बिजनेस के लिए उस लोन को ले रहा होता है। तो हम उस टैट को काफ़ी कम रखते हैं, मतलब वो हम अब 24 से 48 आवर्स में हम उसको डिस्बर्समेंट कर देते हैं। वेरी क्विक लोन। यस, क्विक लोन वी कैन से, वेदर इट इज़ अ फिजिकल लोन्स। मतलब ये कोई ऐप का लोन नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाता है, फिजिकल लोन से। लेकिन टीम की रीच, जो हम लोकली NBFCs की बात करें तो उनकी रीच और हमारी जो कस्टमर केयर है बैक एंड पे, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम 48 आवर्स में ट्राई करते हैं कि लोन को क्लोज कर दें, जब तक कि कस्टमर की तरफ से कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमारा, तो काफ़ी हम जोग्राफिकली वाइज भी और पोर्टफोलियो वाइज भी, SME भी है, MSME भी है, एग्री भी है, वाटर सैनिटाइजेशन भी है, ग्रीन भी है, तो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। सो दीज आर द थिंग। कस्टमर्स हमारे अब काफ़ी रिपीटेड हो गए हैं, तो वो रिस्क थोड़ा सा कम हो गया कि अभी 8 years वी हैव कंप्लीटेड द 8 कितने years। परसेंटेज के हिसाब से
70 to 80% रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं। ओके, तो जो हम जिनको अब उनका 5th या 6th साइकिल चल रहा होता तो ये लोन वापस लेते हैं कस्टमर्स फिर? है, हाँ लोन ख़त्म होता है फिर वो दोबारा से ले लेते हैं, फिर ख़त्म होता है फिर वो दोबारा से ले लेते हैं। ओके तो ओके, दैट इज़ ऑल्सो ए यूएसपी कि हाँ वही कस्टमर बार बार आता है तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस हमें पता चल गया, उसका रहते हैं। बिहेवियर पता चल गया है। हमारे पास इतना अभी डेटा भी इतना तो यू स्ट्रॉन्ग एनालाइज हो द गया। डेटा आल्सो? यस यस यस, ओके, सिबिल हम लोग चेक करते हैं, सारी सिबिल में सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो वो फील्ड विजिट होती है, यहाँ से टीम डिसबर्समेंट से पहले कॉलिंग करती है कस्टमर को, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो मैम सपोज अगर कोई कोई लाइक एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ से सिर्फ एक इंसान का भी लोन है जिसने अप्लाई किया है, सो द टीम विल गो फॉर दैट ओनली वन पर्सन टू चेक? नहीं, वो जैसे मैंने बताया ना कि ब्रांच है और उस ब्रांच के 25 किलोमीटर एरिया तक ही हम लोग करते हैं। तो वो अगर उस ब्रांच में आता है तो टीम विल गो एंड, क्योंकि जाके टीम ही सोर्स करती है। अगर कोई टीम कोई जा रही है तो एक पर्टिकुलर एरिया से या एक पर्टिकुलर कैन से लोकेलिटी मोहल्ला से वो कोई 4 या 5 लोगों को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको लोन देते हैं। ओके, तो वो एक 25 एरिया में जितना भी होगा, चाहे वो एक होगा चाहे 2 होगा, वो फिर हम लोग करते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल्स का क्या रहता है एनबीएफसी में? इफ़ यू लुक इनटू स्पेसिफिकली उषा फाइनेंस, तो फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं अभी उषा फाइनेंस के? फाइनेंशियल अच्छे हैं अभी। जब से हमने स्टार्ट किया है हम प्रॉफिट में ही हैं, मतलब डे 1 से, फ्रॉम 1 ईयर से। और अभी लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट 14 CR का है, 20 मार्च 24 का। और AUM 330 का है। और वी आर प्लानिंग की अच्छी ग्रोथ करेंगे। और जैसे कि सिंस यू आर इन द CEO एंड यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स, क्या होता है कि हर कंपनी का फाइनेंशियल्स का तरीका अलग होता है प्रेजेंट करने का। yes, कुछ होता है कि एक्चुअल में वो पॉजिटिव साइड है फाइनेंशियल्स में देखने में, हम मान ले, बट जो कंज्यूमर्स है उसको नेगेटिव साइड से देख लेते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि एनबीएफसी में क्या फैक्टर एनालाइज करने हैं, एनबीएफसी में क्या फैक्टर नहीं एनालाइज करने हैं। तो आप कुछ ऐसा फैक्टर बताएंगे जो आपको लगता है कि लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये तो फैक्टर नेगेटिव है कंपनी में, बट एक्चुअली इट इज़ वर्किंग द फेवर ऑफ द कंपनी? कॉस्ट ऑफ द फंडिंग को हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें, कि कोई भी जो हम फंड रेज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल जो होता है एनबीएफसी के लिए पैसा ही होता है। वो हम आगे बैंक्स और बड़ी एनबीएफसी से रेज करते हैं, या कोई AIF से रेज करते हैं, फंड से रेज करते हैं, इंडिविजुअल से रेज करते हैं NCD के थ्रू। या वी आर नॉट द डिपॉजिट टेकिंग, बट स्टिल एज ए प्राइवेटली प्लेस्ड हम NCDs रेज कर रहे हैं। तो वो हम जो रेज करते हैं, तो वो एक मुझे लगता है कि फॉर NBFC एक बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया रहता है कि आप कितने पे रेज कर रहे हो, फिर आप कितने पे दे रहे हो, बिटवीन जो उनका गैप होता है वो स्प्रेड कितना आपको आ रहा है। तो कोई उस स्प्रेड को 3 to 4% ले रहा है, कोई 5 to 6% ले रहा है। तो वो अलग अलग NBFCs के लिए अलग अलग रहता है। ओके, और इसमें कैश फ्लो का कैसा सिस्टम रहता है मैम? कैश फ्लो जो आपकी रिकवरीज होती हैं, आपको एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आपको उसकी पूरी प्लानिंग करके रखनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपका क्या क्या कलेक्शंस आनी है, एक्सेप्ट दी जो आपका आप फंड रेज करोगे इन ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स। तो आपको पहले अपनी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ से आपका फंड आने वाला है, क्या रिकवरीज आने वाली हैं। मान लो हम लोग क्या करते हैं, मंथ के शुरू में ही एक पूरी रिकवरी का निकाल लेते हैं कि मेरे को इस मंथ में 50 करोड़ की रिकवरी आ रही है, जिसमें से मेरे को 20 CR की अपने लैंडर्स का लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, कि उनकी EMI जानी है। तो हम सबसे पहले वो 20 CR की प्लानिंग कर देते हैं, अलग बिल्कुल पैसा निकाल देते हैं कि 10 तारीख तक सारा पैसा आना है। मतलब हमने वो मंथली प्लानिंग ऐसी की हुई है कि 10 तारीख तक हमारे सारे लैंडर्स हमारी रिकवरीज आ जाएँ और उनका सारा पैसा चला जाए। उसके बाद जो पैसा बचता है उससे फिर हम बाकी की डिस्बर्समेंट्स वगैरह करते हैं। ओके, तो कैश फ्लो की पूरी प्लानिंग रहती है फिर 3 मंथ्स के लिए। तो लाइक अभी तो आपका काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा होगा उषा फाइनेंस को लेके। yes. तो लाइक इफ़ यू आर नॉट डूइंग उषा फाइनेंस, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग राइट नाउ फॉर द उषा फाइनेंस, व्हाट यू वुड बी डूइंग? Then I think I will be busy with my personal life. I have Okay. 2 kids, Okay. so I'm busy with them only. Okay. So I have 2 targets. One is Usha and my kids. थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू बुल्सफील्ड पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का पॉडकास्ट। Yes. और मैम आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द IPO दैट इज़ कमिंग, Thank you so much. एंड आई होप कि हम आफ्टर 5 to 6 मंथ एक और न्यू पॉडकास्ट होना चाहिए जिसमें पब्लिक को पता चलना चाहिए कि जो अभी जो रिजल्ट्स हैं वो बूस्ट कितने हुए हैं और अभी जो अचीवमेंट्स है वो कितनी आगे एक्सपैंड हो गई हैं। Surely. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much.